Assalamu alaikum students. So today the topic of discussion is about semiconductor diodes. Initially we will be discussing in this topic how these semiconductor devices or semiconductor diodes have played a very crucial role in advancing the technology related to the BJTs, transistors and diode. So basically in this particular discussion we will be discussing about different diodes, different materials, basically semiconductor materials like germanium, silicon and gallium arsenide, how these materials are helpful in initial times to create different semiconductor materials. So basically, whenever we talk about the construction of any of these discrete solid-state electronic devices, so initially it starts with the beginning of making some integrated circuits, जहाँ पे हम different semiconductor materials की बात करते हैं, which are the basis of getting these highest quality integrated circuits. So basically when we discuss about semiconductors, तो semiconductors जो हैं वो हमारे पास एक class of elements है कि जिसके अंदर जो conductivity है basically it's between that of good conductors and that of insulators. यानी इसकी जो conductivity को अगर हम categorize करें तो वो कहीं good conduction और insulator की category के दरमियान आती है. And in general whenever we talk about semiconductor material तो उसकी हम दो different classes discuss करते हैं. एक पहला जो है single crystal की बात करते हैं हम कि जिसमें भी discuss के जी germanium is a single crystal semiconductor. इसी तरह silicon we have another single crystal semiconductor material. Because we have repetitive crystal structures. Let's say for example germanium जो है वो exist करता है with a single crystal. Unlike this single crystal semiconductor we have compounds जहाँ पे एक से ज़्यादा elements जो हैं वो bonding के through basically एक material या एक semiconductor material जो है वो हमें मिलता है. Let's say for example we will discuss about gallium arsenide GaS जिसको हम denote करते हैं. इसी तरह cadmium sulfide, gallium nitride and gallium arsenide phosphide. तो ये एक से ज़्यादा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को या इनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में कंबाइन होने के बाद हमारे पास एक कोई हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो अचीव होता है आफ्टर हैविंग दीज डिफरेंट मटेरियल्स. So moving on further, we discussed previously कि हमारे पास जब हम कोई भी semiconductor material की बात करते हैं from which we make different type of electronic devices. So most of the frequent used materials for semiconductor devices were germanium, silicon and gallium arsenide. अब इसमें हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली हर मटेरियल जो है उसकी एक अपना एडवांटेज और एक कोई ना कोई डिसएडवांटेज मौजूद था. So let's say for example in 1939 when diode was discovered and again transistors were discovered in 1947. So germanium जो है वो यूज़ किया जाता था in order to develop those semiconductor devices. And the reason was कि the germanium was relatively easier to find और इसकी वजह से और large quantity में exist करता था. And a special property you can say of this germanium was that the refining process was easy as compared to the other semiconductor material. So it was very easy to achieve the high level of purity. For example, जब fabrication की जाती है different semiconductor materials की, तो उस fabrication process में important thing is कि how pure your semiconductor material is, उसका जो atomic structure है वो कितना support करता है. तो in that case this germanium people can achieve high level of purity during the fabrication process. So when we have this diodes and transistors which are constructed by using this germanium,
द इशू विद दिस जर्मेनियम मटेरियल वाज दैट कि उसकी रिलायबिलिटी का बड़ा मसला था. एंड रिलायबिलिटी से मुराद ये कि जब भी व्हेन वी से कि जी वी हैव सम रिस्पांस फ्रॉम दीज डिवाइसेस डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, तो कितना हम रिलाय कर सकते हैं उसकी जो आउटपुट हैं. तो वहाँ इशू जर्मेनियम का जो मटेरियल है, बिकॉज दिस जर्मेनियम मटेरियल इज़ सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ये जर्मेनियम जो है इसके आउटपुट को भी इफ़ेक्ट करता है ये. तो उसकी वजह से ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स जो बनाए गए थे दे वर वेरी सेंसिटिव विद द टेम्परेचर. सो लेटर ऑन साइंटिस्ट बेसिकली दे स्टार्टेड द प्रोसेस, इम्प्रूव द प्रोसेस बाय इंक्लूडिंग let's say silicon for the manufacturing, because silicon by nature जो है वो temperature sensitive नहीं है as compared to germanium. तो इसी तरीके से जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आनी शुरू हुई और फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मज़ीद एक्सेल की, तो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जी अब जो इश्यूज़ हैं बाय इवन यूजिंग सिलिकॉन, वहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड के बड़े इश्यूज आने लगे कि जितनी सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, सिलिकॉन को जब यूज़ किया जाने लगा तो वहाँ स्पीड का एक बड़ा इशू आया. और फिर जब कंप्यूटर्स की बात स्टार्ट हुई तो वहाँ पे हायर एंड हायर स्पीड्स वर रिक्वायर्ड. जब कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करते हैं हम तो वहाँ पे हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वाज रिक्वायर्ड. So silicon was not up to the mark for that speed issues. तो वहाँ फिर गैलियम आर्सेनाइड जो है, जो कि एक हमने इससे पहले जो डिस्कशन की थी सिंगल मटेरियल या कंपाउंड की, तो गैलियम आर्सेनाइड was composed of two different materials, gallium and arsenide, to have covalent bond. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड जो है वो उसके थ्रू जो है वो ट्रांजिस्टर 1970 में डेवलप किया गया. और ये जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड ट्रांजिस्टर था, इसकी जो स्पीड को अगर हम सामने रखते हुए, स्पीड ऑपरेशन को सामने रखते हुए अगर हम एफिशिएंसी देखें तो सिलिकॉन के मुकाबले में इसकी एफिशिएंसी 5 टाइम्स ज़्यादा थी. तो इसी वजह से आज भी हम देखते हैं कि हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड जो है वो एक वन ऑफ द बेस मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट हाई स्पीड एप्लीकेशन और हाई स्पीड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. एंड वन ऑफ द डिज़ाइन पॉपुलर डिज़ाइन इज़ VLSI, which is very large scale integrated circuit designs. Okay, so in order to understand why these three materials like silicon, germanium and gallium arsenide were preferred to manufacture these semiconductor devices, यहाँ पे ज़रूरी है to understand their properties, to understand what are their atomic structures and how they are basically contributing because of their structures. तो गोइंग टू द बेसिक्स, वी नो कि जी जो कोई भी एलिमेंट है उसका जो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ एनी ऑफ द एटम. उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस मौजूद होता है. न्यूक्लियस इज अगेन कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच आर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. We have been learning or understanding these concepts in our earlier classes. तो वहाँ जब हम इसका जो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. So let's say for example in the figure you can see that we have silicon structure where we have 3 different orbits, and in these 3 different orbits we have, let's say for example, in silicon structure we have total 14 orbiting electrons. ठीक है जी. और जो लास्ट जो शेल है यानी लास्ट मोस्ट जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें, so we will have let's say 4 valence electrons in this particular silicon structure.
इसी तरीके से जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो वी हैव 4 different again valence electron in the outermost shell, and there are a number of electrons present in this germanium atom. And then let's say for example when we discuss about gallium arsenide, so in this gallium arsenide, if we consider this gallium individually, there are basically 31 electron in total, और जो outermost shell है वहाँ पे you can see कि valence electrons जो हैं वो 3 हैं हमारे पास. इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा आर्सेनिक का जो एटम है वहाँ पे वी हैव लेट्स से 33 ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है यू कैन से वी हैव 5 valence electrons. So these are the basic atomic structures of different elements or materials that we use for the making of semiconductor devices. So before going into the details, we must understand or recall all the concepts which are relevant to the atomic structures. So let's say considering the atomic structure of silicon, which has 14 orbiting electrons, तो वहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में मौजूद हैं are called valence electrons. So in case of silicon and germanium, we can see that we have 4 valence electrons because 4 electrons are orbiting around the valence shell, which is the outermost shell. Similarly, for gallium, we have 3 valence electrons orbiting around the valence shell, and for arsenic, हमारे पास 5 valence electrons हैं. In the diagram, you can see कि जो कि valence shell में मौजूद हैं. So when we have 4 valence electrons, they are called tetravalent. इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 हैं तो 3 ऑर्बिटिंग जो आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसको हम ट्राईवैलेंट, और अगर 5 हैं तो उसको हम पेंटावैलेंट कहते हैं. एंड बेसिकली दिस टर्म वैलेंस जो है ये इंडिकेट करता है उस पोटेंशियल को जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बेसिकली, तो फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ 4 डिफरेंट मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. यहाँ से अब हम आगे जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग. किस तरीके से चाहे वो अगर सिंगल हो या कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो एक क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है of these semiconductor materials. So after discussing what is valence electron, or we have discussed in the previous slide कि जी valence electron जो है वो किसी भी semiconductor material just like silicon, germanium में हमारे पास जो outer most shell है वहाँ पे total 4 electrons जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, जिसकी वजह से हम उसको ये कंसिडर करते हैं कि वी हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम. सो नाउ वी कैन सी कि whenever we have this silicon or germanium crystal, where we can see in the diagram कि silicon में basically we have 4 valence electron in one of the atoms of this silicon. तो basically this silicon atom is connected or has some arrangement with the other adjoining atoms of the silicon as shown in the figure. So in this way the mutual sharing of these electron occurs. So for every silicon we know that we have 4 different electron in the outermost valence shell. तो वहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है जिसके थ्रू जो है सिलिकॉन जो है बेसिकली इट शेयर्स इट्स outermost electrons, that particular type of bonding of atom, or we can say that particular configuration of bonding of atom is called covalent bonding. So as we can see in this slide, instead of silicon, just like we have silicon here in the previous slide, we have gallium arsenide basically, जिसकी जो कि एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है.
and we can see in the covalent bonding of gallium arsenide crystal that we have two different atoms. Basically, one is gallium and the other one is arsenide. Now, considering this structure of the atom of gallium and arsenic, we know कि हमारे पास जो है basically अब जो sharing है as compared to the previous case in silicon, वहाँ पे silicon जो है it has 4 electrons in the outermost shell, whereas in this case we have compound semiconductor which is composed of gallium and arsenide. In gallium we can see clearly that we have 3 valence electron in the outermost shell, whereas जो arsenide है वहाँ पे हमारे पास total 5 electrons हैं outermost shell में. So it is clearly seen in the figure that basically जो जर्मेनियम की बात करें या सिलिकॉन की जब हमने बात की थी तो वहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सेम है दैट वी हैव अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, बट इन द प्रीवियस केस वी हैड द कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ सिलिकॉन इटसेल्फ. Whereas जब यहाँ पे हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं विच इज़ अगेन द कंपोजिशन और कंप्राइज्ड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स गैलियम एंड आर्सेनाइड, तो वहाँ पे गैलियम अपने जो आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर करता है आर्सेनाइड के 5 डिफरेंट एटम्स से. अगेन दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग दैट वी हैव सीन with which we get gallium arsenide crystal. Just like in the previous slide हमने देखा कि सिलिकॉन में जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो हमें सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो अचीव होता है. So another important aspect that we need to understand here, जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वी नो कि जी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पे जो हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड की जब हम बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेसिकली बिकॉज यू हैव सम शेयरिंग ऑफ एटम्स इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस. के आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग के रिज़ल्ट में जो या कोवेलेंट बॉन्डिंग के रिज़ल्ट में जो हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. बट इवन देन एट दिस पॉइंट जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो they can absorb any external energy or they can have any external natural cause, जिसकी वजह से जो हमारा वो कोवेलेंट बॉन्ड है वो जो है वो ब्रेक हो सकता है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली एक फ्री स्टेट पे आ सकते हैं. So what we mean by this free state, basically we will be discussing it in more detail when we will be discussing about conduction band and valence band जो है जो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट हेयर जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है कि जब यू हैव सम प्रॉपर अरेंजमेंट्स के जहाँ पे आपने जब हमने गैलियम आर्सेनाइड की बात की कि उसका एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हुआ और एक लैटिस स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ एक जिसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है. बट ड्यू टू सम एज वी डिस्कस के एक्सटर्नल नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आपके आउटर मोस्ट शेल में दे कैन गेट डिस्टर्ब, और वो जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग दैट कैन बी डिस्टर्ब बाय दीज एक्सटर्नल नेचुरल कॉजेज. तो वहाँ पे बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स बेसिकली they have some sensitivity when we applied some electric field, let's say for example for different sources. So basically when we discuss about these external causes कि कौन से वो external causes हो सकते हैं वो different effects हो सकते हैं. Let's say for example we can think of about light energy in the form of photons, or maybe some thermal energy in the form of heat maybe from the surrounding mediums के वहाँ से जो है वो due to some heat or some other लाइट सोर्सेज जो है वो हमारे पास ये जो एक्सटर्नल कॉज है दैट हैज़ बीन रिजल्ट इन गेटिंग सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज बेसिकली ब्रेकिंग दैट कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन दीज. तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा वो जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट एनी मोर फिक्स्ड इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. So
After discussing about the free electrons, it is important to understand the term intrinsic in this intrinsic material. Basically, whenever we talk about intrinsic, इसमें जब भी हम intrinsic की बात करते हैं तो कोई भी जब हम semiconductor को consider करते हैं कि उसको semiconductor material को इतना ज़्यादा refine किया जाए in order to reduce the impurities at a very low level, कि जहाँ पे उसको इतना ज़्यादा प्योर बना दिया जाए कि इट कैन बी अवेलेबल फॉर दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि यू कैन क्रिएट एनी सेमीकंडक्टर डिवाइस फ्रॉम दैट मटेरियल. सो बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस इंट्रिंसिक वर्ड किसी भी मटेरियल को लेके, तो वहाँ पे हम उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को इतना ज़्यादा प्योरीफाई करते हैं और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ करते हैं कि जहाँ पे इट कैन बी ईजिली अवेलेबल फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. So coming back to the point where we were referring कि जी free electrons हमारे पास जो है वो मटेरियल में due to some external causes जो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने हीट और लाइट कंडीशंस की पिछली स्लाइड में भी डिस्कशन की थी. सो बेसिकली these free electrons जो कि किसी भी external causes की वजह से जो है वो क्रिएट होते हैं, उनको हम intrinsic carriers कहते हैं basically. So let's say for example if we consider table 1.1. So if we compare this, basically this table 1 is showing us कि जी एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने जो हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं. So in this table we can clearly see कि जी जो हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर है जिसको हम Ni से डिनोट भी करते हैं. सो इन द टेबल वी कैन सी कि जो जर्मेनियम है उसके जो हमारे पास अगर मैं कंपेयर करूं गैलियम आर्सेनाइड से, उसके हाईएस्ट हमारे पास जर्मेनियम के जो फ्री या इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं मौजूद हैं 2.5 10 to the power 13. So basically it's much more higher as compared to gallium arsenide. So जर्मेनियम में हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस हैं गैलियम आर्सेनाइड के मुकाबले में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं. अब ये जो नंबर ऑफ़ कैरियर्स हैं हमारे पास ये जो मौजूद हैं हमारे पास, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बेसिकली. बट द अदर करेक्टरिस्टिक जो किसी भी हम मटेरियल की बात करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि जी ये कितना अच्छा सेमीकंडक्टर है, अनदर फैक्टर इज़ रिलेटिव मोबिलिटी जिसको हम म्यू एन से भी डिनोट करते हैं. एंड एज यू कैन सी जो रिलेटिव मोबिलिटी है बेसिकली किसी भी मटेरियल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री कैरियर्स तो मौजूद हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स तो मौजूद हैं, बट उनकी जो मोबिलिटी फैक्टर है कि वो कितना ज़्यादा उनके अंदर टेंडेंसी है टू मूव बेसिकली, तो सच फैक्टर वी टर्म्ड एज रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ द फ्री कैरियर्स. सो वी कैन सी के टेबल 1 में हमने जब देखा, जब हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसिडर किया कि हमारे पास जो फ्री कैरियर्स थे टेबल 1 के अंदर गैलियम आर्सेनाइड के अंदर कम थे मौजूद. लेकिन जब हम टेबल 1.2 में जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि गैलियम आर्सेनाइड की जो रिलेटिव मोबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा जो है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन है. इसी तरीके से गैलियम आर्सेनाइड की. अब यहाँ पे ये बेसिकली जब हम गैलियम आर्सेनाइड को कंसिडर करते हैं तो वी कैन सी के it is somehow 5 times basically as compared to the silicon material. So previously जो फ्री कैरियर्स की हमने बात की थी जर्मेनियम की, जो कि तकरीबन ट्वाइस थे एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ दिस रिलेटिव मोबिलिटी वो जर्मेनियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन. दैट्स वाई जो हमने इनिशियल स्लाइड्स में लेक्चर के शुरू में बात की थी कि जर्मेनियम जो है
वो प्रेफर किया जाता रहा सिलिकॉन के बाद, बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू वर्क विद द हाई स्पीड रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो जर्मेनियम हैज़ द रिलेटिव मोबिलिटी फैक्टर मोर देन दैट सिलिकॉन। तो इसलिए इनको जो हाई स्पीड एप्लीकेशंस हैं जस्ट लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने बात की, तो वहाँ पे जर्मेनियम को इसीलिए प्रेफर किया जा रहा होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन अगर मैं बात करूँ। समहाउ अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जर्मेनियम की इंट्रिंसिक कैरियर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, लेकिन रिलेटिव मोबिलिटी यानी इन ऑर्डर टू के उन इंट्रिंसिक कैरियर्स की या उन फेयर इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मोबिलिटी की जो एक फीचर है टू मूव, वो क्योंकि जर्मेनियम में ज़्यादा, इस वजह से वी प्रेफर जर्मेनियम ऑन सिलिकॉन। So after discussing about this basically the carriers, free carriers की हमने बात की intrinsic materials के अंदर, जहाँ हमने देखा कि intrinsic materials are the purest form of that material, semiconductor material. The question here is जो सबसे बड़ा important point है यहाँ पे कि इस वक्त जो हमारे पास जो technological advancement है जो कि अब तक होती चली आई है, इज़ समथिंग कि जी हम किस तरीके से एक सेमीकंडक्टर ऑफ द वेरी हाई प्योरिटी जो है वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम्स, अगर हम इससे पहले जो इनिशियल लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि सिलिकॉन के अंदर असल में यही प्रॉब्लम था प्योरिटी का, कि जिसकी वजह से जर्मेनियम वाज फाउंड टू बी मोर प्योर एज़ कम्पेयर टू दैट सिलिकॉन। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम बात करते हैं कि इम्प्योरिटी लेवल्स अगर हम कंसिडर करते हैं कि 10 बिलियन में से एक पार्ट इम्प्योरिटी का जो है वो हमारे पास, जब भी हम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं, सो वी हैव लेट्स से वन पार्ट ऑफ द इम्प्योरिटी विद द 10 billion parts of the pure structures. So one can ask, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि क्या इतनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्योरिटी ऑफ दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल इज़ इट नेसेसरी? देन द क्वेश्चन इज़ समथिंग कि जी क्या हमारे पास हमें नज़र आता है कि हम बार बार बात करते हैं कि हाई लेवल ऑफ प्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दीज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. So are they that much necessary? So the answer is कि they certainly are. कि जब हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ एक अगर हम इम्प्योरिटी का पार्ट हमारा ऐड हो जाता है ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल पर मिलियन वेफर्स जो हम सिलिकॉन मटेरियल के बना रहे हैं, तो वो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ एक इम्प्योरिटी ऐड होने की वजह से इट कैन शिफ्ट दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम relatively poor conductor to a very good conductor of electricity by only adding a one part of the impurity. So somehow we have to deal with these new comparisons, या जहाँ पे हम बात करते हैं कि जहाँ हम किसी भी मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं, सो दैट बेसिकली चेंजिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इंक्लूडिंग सम अदर मटेरियल, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डोपिंग. एंड समहाउ ये जो डोपिंग का प्रोसेस है, ये जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं या ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, इसको बड़ा आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को. सो ओवरऑल व्हेन वी डिस्कस अबाउट डोपिंग, तो डोपिंग इज़ समथिंग कि जब हम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, during that process basically we intentionally introduce or add some impurity into our intrinsic semiconductor, and by being intrinsic semiconductor मेरा मतलब ये है कि जिसकी हमने बात की थी which is of very pure form. तो किसी भी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम कोई इंटेंशनली, कोई जानबूझकर कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और वो क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज वी नीड टू मॉड्यूलेट और वी नीड टू चेंज इट्स इलेक्ट्रिकल, इट्स ऑप्टिकल और एनी अदर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के, जहाँ पे हम उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या कोई और दूसरी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है, उसको अगर मॉड्यूलेट या चेंज करना चाहते हैं, तो हम उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इंटेंशनली डोपिंग के थ्रू कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं. तो जो डोप्ड मटेरियल है उसको बेसिकली कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर.
और जहाँ पे हम ये सेमीकंडक्टर डोप्ड जो मटेरियल हमने बनाया है वो फिर कंडक्टर की तरह जो है बिहेव करने लगता है रादर देन दैट सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को वी कॉल्ड एज डीजेनरेट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. So after discussing these intrinsic materials, one of the important things and interesting things that about semiconductor and conductor is that कि जब हम जो मेजर डिफरेंस अगर देखें सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के दरमियान कि उनका सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स का रिएक्शन क्या होता है व्हेन वी अप्लाई सम हीट टू दीज कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस हमें समझना है व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट. बेसिकली there are three main types of temperature coefficient when we discuss this temperature coefficient. First is positive temperature coefficient कि जहाँ पे हम देखते हैं कि जी किसी मटेरियल की जब हम बात करते हैं और हम जब उसको हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा होता है. सो all those materials which have increased in the resistance when you apply the temperature, they are called positive temperature coefficient. So let's say for example अगर मैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, ऑल दीज मेटल्स आर बेसिकली पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के जहाँ पे जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस में, इंटरनल रेजिस्टेंस में इजाफा होता है. एंड दिस इज़ बिकॉज कि जब हम रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है, जब इंक्रीज़ करते हैं हम हीट को, सो वाई दिस इज़ हैपनिंग इन दीज कंडक्टर्स? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज द जो हमारे पास नंबर ऑफ कैरियर्स हैं किसी भी कंडक्टर में वो इंक्रीज़ नहीं करते विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, बट वहाँ होता क्या है कि एक वाइब्रेशन पैटर्न जो है वो उसकी वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन बेसिकली द फ्लो ऑफ कैरियर्स जो हमने बात की थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बेसिकली विद इंक्रीज टेम्परेचर वहाँ पे हमें नज़र आता है कि एक वाइब्रेशन पैटर्न तो मौजूद है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी कैरियर्स में इजाफा नहीं हुआ है सच. सो इन दिस वे वी कैन से कि जी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर द कंडक्टर्स कि जहाँ पे जो भी मटेरियल हैं जो रिएक्ट करते हैं इस तरीके से कि जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है. वेयर एज द ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कि जहाँ पे हम कोई जब हीट अप्लाई करें उन मटेरियल्स पे तो उनकी रेजिस्टेंस में कोई इजाफा नहीं होता है, दे रिमेन कांस्टेंट. लाइक जो हम मटेरियल्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैग्नीन एक मटेरियल है दैट हैज़ ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट. सिमिलरली जो तीसरी कैटेगरी है ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पे बेसिकली जब हम हीट अप्लाई करते हैं इन मटेरियल्स को तो इनकी रेजिस्टेंस में रिडक्शन होती है, कमी होती है इनकी जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी कंसीडर लेट्स से सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उनके अंदर एक इंक्रीज लेवल ऑफ कंडक्टिविटी मौजूद है बाय अप्लाइंग दिस हीट. और जैसे ही हम ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं इस थर्मल एनर्जी को. क्योंकि अगर आपको याद हो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नल जो हमारे पास बेसिकली इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ कैन बी बिकॉज ऑफ लाइट और बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जब हम टेम्परेचर राइज होगा तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है they can increase and they can increase up to the point कि they absorb sufficient thermal energy और इतनी ज़्यादा कि वो जो कोवेलेंट बॉन्ड था, अगर आपको याद हो हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात की, गैलियम आर्सेनाइड की बात की, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में बन रहा था वो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी इट ब्रेक्स डाउन. And that in that way we have more free carriers or free valence electrons. So therefore we can say कि हमारे जो semiconductor हैं they are negative temperature coefficient materials, whereas जो हमारे पास pure conductors हैं वो
positive temperature coefficients. So that is the difference, we can say, between these semiconductors and conductors, that conductors are basically the positive temperature coefficients, whereas जो semiconductors हैं, they are negative temperature coefficients. So with that, we end up with our first lecture. In the next lecture, we will be discussing about different energy levels, as well as different N and P type materials. Thank you very much.